आपने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा, किस तरह के स्ट्रगल्स आपको फेस करना पड़ा? स्ट्रगल इज ऑलरेडी देयर। एक इनिशियल लेवल में होता है, आफ्टर अचीवमेंट देन इम्प्लीमेंटेड लेवल में। जब तक फैमिली साथ नहीं देते हैं, जब तक हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं कर पाता है। We are not organized because, you know, citing the example of our Srimati Jarjum Madam, she stood for the MP election. My humble question to the women folk of Arunachal, how many of you have voted for her? क्योंकि टिकट का जो बंटवारा होता है उसमें लोकल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का नहीं, लोकल एमएलए का बहुत हाथ होता है। अरुणाचल की महिलाएं, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज का जितना भी म्यूनिसिपैलिटी और जिला का, पंचायत का, ग्राम का इलेक्शन हो भी रहा है, 22 दिसंबर का होगा, उसमें ये दावे के साथ मैं कह के दे सकती हूँ कि 90% जो महिला उम्मीदवार है वो अपने परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनके डिसीजन से आए होंगे, उनका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगा। ये बात सच है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर कैप्चरिंग पे लगा हुआ है, वो जनता को एजुकेट करने पे नहीं लगा। इलेक्शनरिंग जो है इट शुड बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, तभी मेल फीमेल बराबर का पार्टिसिपेशन हो सकता है। माइंडसेट को जब तक चेंज नहीं करेगा और नहीं कर पाएगा तो सिस्टम हमारा आंख का सामने में इधर पड़ा रहता है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो पैट्रियार्की जो है वो सिर्फ मर्दों के दिमाग में नहीं है। पैट्रियार्की एक वैल्यू सिस्टम है, सोशल वैल्यू सिस्टम, जो बहुत औरतों के दिमाग में भी है। तो वो जब औरतों के दिमाग में रह के उनके जुबान से जब निकलती है वो तब थोड़ा दुखदायी होता है। Panchayat and municipal election will be held on December 22nd after a delay of more than 2 years. But when we talk about women's participation in politics, irrespective of the reservation, the story is still the same. Women are still far behind in active politics in comparison to its opposite gender. Hello and welcome to the space. Tonight, we will be having a special panel discussion on political participation of women in Arunachal Pradesh. And I have with me 3 extremely experienced and competent panelists for the discussion. Our first panelist for the night is Srimati Jarjum Ate, a spokesperson of Janata Dal Secular. She has always been at the forefront of women's and children's rights movement in the state for more than 3 decades. She has spearheaded the establishment of State Women Commission, implementation of women's reservation in Panchayati Raj election in the state, and so much more. In fact, if I start talking about all the activities she has done and the achievements in her political career, then this panel discussion would never even start. So, ma'am, thank you so much for joining us tonight and welcome to our studio. Our second panelist is Srimati Higyo Aruni, President BJP Mahila Morcha Arunachal Pradesh, one of the foremost women entrepreneur from the state, and also before entering politics, she was involved in many NGO works, especially related to women empowerment and welfare. She also wears the crown of being the first chief councillor of Itanagar Municipal Council, which has now become the Itanagar Municipal Corporation. And our third panelist of the night is Srimati Meena Toko, the youngest among our panelists tonight. Her political career has been rising at a very rapid pace. Within 2 years after joining politics, she has become the General Secretary and spokesperson of Arunachal Pradesh Congress Committee. And she has always been very vocal about her opinions related to social issues and many other developmental activities. So welcome ma'am, welcome all of you to our studio tonight, and thank you so much for joining us. तो हमारा आज का ये चर्चा शुरू होने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आज की पैनलिस्ट है वो भले ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आई हो, लेकिन टुनाइट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज। आज वो यहाँ पर अरुणाचल की महिलाओं की आवाज़ बनकर आई है। तो हम अपनी ये चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू द पैनल कि आप सभी को क्यों लगता है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, महिलाओं का राजनीति में भागीदारी कितना महत्वपूर्ण है? हम शुरुआत करना चाहेंगे श्रीमती हिग्यो अरुणी जी से। हमारा अरुणाचल में महिला जो पॉलिटिक्स में आना, पार्टिसिपेट करना,
ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत। पहला जितना जो जानते थे महिला बहुत पीछे में है, ज़माना पार ये हुआ चला गया। अभी हमारा यहाँ पे जानकारी वाले लोग हैं और बहुत मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव ये मेंबर्स लोग हैं, तो उनको बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना और काम करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मर्द का बराबर इक्वालिटी लाना है और हम साथ कंधे से कंधे मिलकर हम लोग काम करना है। बस इक्वालिटी के लिए हम लोग काम करेंगे, तो इसलिए आना बहुत ज़रूरी है। तो जर्जुम मैम, जैसे कि अरुणी मैम ने कहा कि इक्वालिटी लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, तो इक्वालिटी कैसे आएगी अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई तो? जब हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी समझते हैं तो हम जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, तो जितने वोट डालने वाले लोग हैं, इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में इतना होड़ क्यों लगता है। कंपटीशन, इलेक्शन में इतना तक की मारपीट हो जाता है, रुपया पैसा इतना खर्चा करके किसी भी तरह से जीतने के लिए लोग लड़ते हैं। तो वो पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो डेवलपमेंट का जो भी डायलॉग है, डिबेट है, वो सब का आखिरकार फाइनल डिसीजन जो है वो पॉलिटिक्स में होता है। और उन सारे डिसीशंस में आज तक हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद महिलाओं का जो है उनका ओपिनियंस, उनका डिसीजन साथ में नहीं रहा जी। 70 साल से ऊपर हो गया स्वतंत्रता का। ये जो वीमेंस एजेंडा जो कहते हैं हम लोग, महिलाओं का जो एजेंडा है, महिलाओं की जो आवाज़ है, वो पॉलिटिक्स में नहीं होने की वजह से हमको लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो इसके चलते महिलाओं का भागीदारी जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है। उनकी जो समझ है, उनका जो नज़रिया है, वो पब्लिक लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक लाइफ में तभी आएगा जब महिलाएं, स्पेशली आपकी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जो एजुकेटेड युवतियां हैं, तो आप लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे उम्र का, हमारी पीढ़ी में जो था कि महिलाएं दब के रहा है जी, उनकी आवाज़ कभी अपने घर में भी बुलंद नहीं हुआ, तो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में बहुत सारे हमारी जो कंटेम्परेरीज है, पब्लिक में खड़ा होके अपना नाम बोलने का भी उनका हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन आपकी जो पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो उनका पब्लिक डोमेन में, पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। तो मीना मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि जर्जुम मैम ने कहा कि जो प्रेजेंट पीढ़ी है, इनको पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है ताकि आवाज़ मिल सके औरतों को। आपने रिसेंटली पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, वो क्यों किया? इससे पहले मेरी जानकारी के मुताबिक शायद आप एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उसे छोड़ के आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, ये क्यों किया, आप हमें बता सकते हैं? नीमे जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। बहुत अच्छा है कि आपने इस शो पे हम तीनों को इनवाइट किया है। हालांकि हम सब अलग अलग पार्टी से हैं, फिर भी फाइनली वी ऑल आर वुमन। तो आपके सवाल पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू से कि हम सब जितने भी मानव जाति हैं वो एक समाज में रहते हैं। समाज किस चीज़ से चलता है? समाज उस चीज़ से चलता है जिसको हम कहते हैं नीतियाँ। पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? राजनीति। और राजनीति क्या होती है? नीतियों का संगम। नीतियों का संगम जो है वो केवल पुरुष से नहीं होता है, क्योंकि समाज महिला और पुरुष दोनों से बने हुए, और दोनों के पास सोच है, दोनों के पास नीतियां हैं समाज को चलाने के लिए। तभी करके मैं कहूँ कि जेंडर इक्वलिटी उसी बेसिस पे नीतियों के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि पुरुष जो सोचते हैं उन्हीं का एक ट्रैक होना चाहिए। समाज दोनों से चलता है, औरतों से, महिलाओं से, और पुरुष से, आदमी से। तो दोनों की जो सोच है उन दोनों को इक्वली, बराबरी का जगह देना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे भागीदारी, तो वो भागीदारी सही समय पे, सही फेज पे, सही ट्रैक पे एक ही साथ जाना चाहिए। तो महिला और पुरुष को सही भागीदारी दिलाने के लिए जो है जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है। और सेकेंड क्वेश्चन आपने क्या कहा था कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की? मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की है? पॉलिटिक्स मेरा अभी कम से कम इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके मेरा 6 से 7 साल तक हो गया है।
पहले निमे जी ने सही कहा है कि मैंने सरकारी नौकरी भी की, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल करके होता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर स्टेट लेवल पे मैंने यूडी के अर्बन डेवलपमेंट के साथ काम किया, फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम किया। तब मैं एक राजनीतिक जीव नहीं थी, एक साधारण महिला थी तो उस समय, और एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो करंट सरकार जो 2015-16 के आसपास सरकार को मैंने मदद भी किया वुमेन हेल्पलाइन चलाने की, फर्स्ट मैनेजर रही वहाँ। तो बहुत सारे काम मैंने पढ़ाई सोशल वर्क में किया, तो देखा कि हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप जैसे एसेट क्रिएट करते हो एक राज्य को डेवलप कराने के लिए, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ में लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की सोच को, उसको तोड़ के उसको ट्रैक पे उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है, ऐसा नहीं है कि हम दूर दराज राज्य से हैं तो हमारे पास कोई सोच नहीं, हमारे पास नीतियाँ नहीं है, हमारे पास अच्छे पॉलिसीज़ नहीं है। बहुत सब पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट कितने अराउंड 70% तो पहुंच ही गए हैं, तो है उस सोच को ट्रैक में लाने के लिए, हमारे राज्य और जनता के डेवलपमेंट में लाने के लिए मैंने बहुत घूमा है, इंडिया घूमा है, बाहर इंडिया से बाहर घूमा है, अपने राज्य का छप्पा छप्पा कोना कोना छान मारा। उस सोच के बाद मैंने सोचा कि फाइनली नौकरी से कुछ होने वाला नहीं। नौकरी में एक सिस्टम रहता है वेयर यू हैव टू बी वेरी ओबीडिएंट एंड यू नो यू हैव टू एक्ट लाइक अ सबऑर्डिनेट, जहाँ पे आपको एक स्पेस नहीं मिल पाता है। अगर जैसे हमारे यहाँ 3 मैडम, हमें मिला के 3 मैडम बैठे हैं, हम जैसे सोच आज़ाद विचार के जो सोचते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी सोच रखते हैं कि करना है, अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना, तो मेरे लिए वो सही जगह नहीं था सरकारी नौकरी करना या फिर, तो तभी करके मैंने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा, तभी से आगे पीछे बिना देखे आगे ही जा रही हूँ। वही एक सोच था कि नीतियों में बदलाव लाना है, हमारे यहाँ के लोग के सोच में बदलाव लाना है। जब आपके सोच में बदलाव होगा, राज्य और यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी है, जैसे भी है सेटिंग, सब खुद ब खुद बदलाव के ट्रैक पे चलेगा। वही सोच के मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। ठीक है, अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो आई थिंक हमारे अरुणाचल में रिजर्वेशन 2003 में आया था पंचायती राज इलेक्शंस के लिए, जब औरतों के लिए। अरुणी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये 2003 से लेके अब तक, जब ये रिजर्वेशन जब लागू हुई तब से लेके अब तक, क्या आपने औरतों का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें आपने किस तरह के बदलाव देखे? अभी रिजर्वेशन का अलावा और ये जनरल कोटा से तो किसी को लड़ने तो देता नहीं है। जनरल को तो इतना लोग बोलते हैं जो रिजर्वेशन दिया है तो आप कैसे जनरल से आएगा, जनरल सीट से आप कैसे टिकट मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाने से तो रिजर्वेशन से काफ़ी हमारा मतलब लाभदायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस बार तक के लिए शायद ये होगा। अभी हमारा जज मैडम ने थोड़ा पहले कहा था, तो अभी यंग लुक है, आने वाला जो ये है पीढ़ी है, तो उससे शायद नेक्स्ट 10 ईयर्स 5 to 10 ईयर्स में ये प्रॉब्लम भी शायद ये होता है तो ओवरकम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आशा में रहते हैं। मीना मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपके जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन में क्या ये सेम सिचुएशन है या फिर कुछ बदलाव आया है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब भी आती है औरतें, उनका ये होता है कि खुद का डिसीजन नहीं होता है 99.9% में। इसलिए ये होता है कि क्योंकि उन लोग खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बाय सेइंग दैट आई एम नॉट ब्लेमिंग द वुमन फोक ऑफ आवर स्टेट, द ट्रूथ इज ट्रूथ, फैक्ट इज फैक्ट। अरुणाचल के महिलाएं, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज भी अगर आज का जितना भी म्यूनिसिपैलिटी और जिला का, पंचायत का, ग्राम का इलेक्शन हो भी रहा है, 22 दिसंबर का होगा, उसमें ये दावे के साथ मैं कह के दे सकती हूँ कि 90% जो महिला उम्मीदवार है वो अपने परिवार के जो मेल मेंबर्स है उनके डिसीजन से आए होंगे, उनका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगा। ये बात सच है। अभी जैसे मैंने कहा कि 65 से 70% तक की लिटरेसी रेट है हमारे स्टेट में,
ये एजुकेशन फैक्टर प्ले ही नहीं करता है। कभी कभी तो एज ए आई बिलोंग टू दिस जनरेशन, जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है अभी अरुणाचल का, उस सिनारियो का, करंट सिनारियो का, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। समझ में नहीं आता है कि औरतें एजुकेटेड होने के बाद भी वाई दे आर डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन मेड बाय द मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिली। इससे ये पता चलता है कि वी वुमन have to come forward and make our own decision on choices. By stating that, I'm not saying कि जो मेल मेंबर्स है उनका डिसीजन नहीं सुनना चाहिए। तो औरतों का भी बुद्धि रहता है, उनको भी इक्वालिटी देना चाहिए। तो उसी हिसाब से औरतों को मैं ये कहती हूँ, इक्वालिटी इज देयर, you have your own brain, you have to push forward it, like उसको you have to be very adamant कि ये मेरा है, मेरा भी यहाँ पे स्पेस है। वो चीज़ की वो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ मोटिवेशन एंड टू आइडेंटिफाई दैट यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, उसकी ज़रूरत है। एंड बदलाव के लिए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं हूँ तो आई एम ट्राइंग टू चेंज इट। अब बाकियों का शायद those who will come in contact with me, I may help them or maybe I'll take their help। ऐसे करके हम लोग बदलाव लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। Yes, there is a difference between the older generation and new generation in participation of women in electoral politics। आपने डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में बात करी, तो उसी के साथ मैं जर्जू मैम से ये पूछना चाहूँगी। आई थिंक मैम यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट द कस्टमरी लॉज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर ट्राइबल कस्टमरी लॉज जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है, women has never played a very important role in the decision making body. It has always been headed by the male member. तो हमारा जो usually women का जो role होता है, it's mostly servile in nature. Is it because of our traditional practice, our customary laws, our decision making bodies जो सदियों से चला आ रहा है, उसके वजह से क्या हमारी ट्राइबल औरतें डिसीजन लेने से परहेज करते हैं? ये आप इसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। जनरली कहे तो हाँ, कस्टम्स के मुताबिक, ट्रेडिशंस के मुताबिक, हमारे जो ट्रेडिशनल काउंसिल्स वगैरह में उसमें औरतों का कोई भागीदारी नहीं रहा ट्रेडिशनली। बहुत टाइम लगता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। फिर भी आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी 1979 से अभी 41 इयर्स हो गया, काफ़ी चेंजेस आया है। अभी हम लोग जब ट्रेडिशनल काउंसिल में औरतों का भागीदारी, उनको एज डिसीजन मेकर्स, एज गांव बूढ़ी का पोजीशन में लाने के लिए बातचीत हुआ, या इवन एज ऑब्जर्वर्स विक्टिम के साथ में जब काउंसिल में हियरिंग के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वीमेन रिलेटेड जितने केसेस है उसमें हमारे APWWS के मेंबर्स को एज ऑब्जर्वर्स, एज मोरल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टीम विक्टिम के साथ उनको इनवाइट करना चाहिए। तो देयर वाज मच रेसिस्टेंस कि ये कहा जाता था कि हमारे पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज में ये कहा जाता था कि मुर्गी बांग नहीं देता है, हैंड जो है दे डोंट क्रो इन द मॉर्निंग। ही मिथुन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, वो मादा मिथुन वो नहीं करता है। और उसी तरह ये भी कहा जाता है कि औरतें कभी काउंसिल में, मीटिंग में भाषण नहीं दे सकता है। इस किस्म का जो कल्चरल इथोस को लेके रेसिस्टेंस वगैरह हुआ, उसको तोड़ना पड़ा। एंड थैंकफुली हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है और जो यंगर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह, जो यंगर जनरेशन है, काफ़ी सेंसिटिव लोग आ गए हैं। एंड जो भी समझदार लोग हैं एक्चुअली दे आर नॉट एंटी वुमेन। उन लोग कहते हैं हाँ पैट्रियार्की नॉर्म्स की बात करते हैं। और हमने देखा है बहुत जो प्रो वुमेन अपनी बेटी को, अपने बहन को, अपनी माँ को प्यार करने वाले बहुत लड़के हैं, लेकिन वो अपना जो एक मैचो इमेज के लिए, अरे ना घर का मर्द है तो अपना जो एक मुखौटा है समाज को दिखाने के लिए, उसके लिए भी उन लोग नियम नहीं तोड़ पाता है जी। तो चेंजेस काफ़ी आया है। और ये रिजर्वेशन की आप जब बात कर रहे थे, रिजर्वेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कानून है तो जनता कानून को मान के थोड़ा सा जगह देता है। अगर कानून नहीं होता तो अभी हेगियो मैडम ने जो कहा और मीना ने जो कहा, तो ये है कि आप रिजर्व सीट में ही लड़िए, जनरल सीट से आपको लड़ना नहीं है। वेरेज रिजर्व सीट से तो लड़ना ही है महिलाओं को, और जिनका
एबिलिटी है, कैपेसिटी है, काबिलियत है, वो जनरल सीट में भी कॉन्टेस्ट करने का हक रखता है। तो बहुत सारे इश्यूज है, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होता तो महिला आ ही नहीं सकती। जी हाँ। आप जो खींच खांच के निकाला है तो फर्स्ट 2-3 जनरेशन जो भी है उसको करना बहुत ज़रूरी था। आज इस इलेक्शन में हमने खुद देखा है कि पढ़ी लिखी लड़कियां, ग्रेजुएट्स, स्पेशली हमारी महिला आंदोलन के साथ जो जुड़ी है, उनमें से बहुत लोग टिकट मांगा है लेकिन उनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि टिकट का जो बंटवारा होता है उसमें लोकल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का नहीं, लोकल एमएलए का बहुत हाथ होता है। तो एमएलएस को वही औरतें चाहिए जो उनके सामने सिर्फ चाय देगा या अपंग सर्व करेगा या उनको गांव में आने से माला पहनाएगा। कोई एमएलए नहीं चाह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वीमेन को हम रिजर्व सीट से लड़वाएंगे अपने पार्टी के थ्रू, ताकि वो लोकल डेवलपमेंट इश्यूज में पार्टी का हाथ बांटे या पब्लिक का मदद करे। वो कोई नहीं सोच रहा है। इनफैक्ट आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूरेप करके, फेडरेशन ऑफ इलेक्टेड वीमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके। तो अभी काफ़ी डोरमेंट है। डोरमेंट होने का भी वजह है, औरतें बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उनको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। तो बहुत कम है जिसका जुनून जो है मीना मैडम की जैसे या हमारे जैसे, मतलब घर वालों को कन्विंस कर सको तो करो, जरूरत पड़ा तो झगड़ा भी करो, लेकिन वो काम को करने का एक जुनून होता है। हर किसी का वो नहीं है। लेकिन अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट तभी करेंगे जब उनको समझ में आएगा कि ये काम क्यों करना ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस है, ट्रेडिशन को सिर्फ तोड़ना नहीं है, ट्रेडिशन को क्यों तोड़ना है, ट्रेडिशन में बदलाव, मैडम ने जो बोला कि सोच जो है हमारे सामाजिक जो विचारधारा है उसमें बदलाव लाने के लिए विचार को क्यों बदलना है वो भी समझना जरूरी है। दैट कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी अंडरस्टूड टू सपोर्ट ए न्यू ट्रेंड। द बेस्ट पार्ट इज आफ्टर बीइंग इन द वुमेन्स मूवमेंट, हैविंग gone through lots of processes, seen and experienced lots of changes, I can say changes are happening for good. Only thing is, हाँ, चूंकि शायद अरुणी मैडम, she is not the president of the BJP party, state BJP का president नहीं है, she is president of the महिला मोर्चा जी, and मैडम जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस PCC है, लेकिन she is not the president, she is not the decision maker of the party. शायद इन लोग जब अपने पार्टी में उनका अपना डिसीजन कन्विंस करने का कैपेसिटी में, पोजीशन में होगा, तब शायद बदलाव आ सकता है। इसी के साथ मैं अरुणी मैम से भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। जर्जू मेहता मैम ने एक बात करी टिकट की, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आजकल हाँ रिजर्वेशन के बाद या विथ चेंजेस, विथ मॉडर्निटी, विथ एजुकेशन टिकट्स मिल रहे हैं, द नंबर ऑफ टिकट्स गिवन टू वुमेन कैंडिडेट्स हैज़ इंक्रीज, लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा है कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लेजिस्लेचर, असेंबली में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए, इंक्रीज नहीं है। इस हमारे रिसेंट इलेक्शन में इट हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियन, जबकि उसका फिगर था ओनली 14.4, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली 14 समथिंग %। तो मैम बहुत बार देखा गया है कि भले ही वो फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो मेल कैंडिडेट से ज़्यादा मोर एक्सपीरियंस्ड हो, बेटर हो, फिर भी यूजुअली टिकट्स नहीं मिलती इतनी आसानी से, और अगर मिल भी जाए तो वो उनका जो इलेक्टिबिलिटी है, जीतना भी थोड़ा इतनी आसानी से जीतते नहीं, वो भी मुश्किल होता है। वो किस लिए आप सोचते हैं? क्या हमारा राज्य, हमारा देश, दे आर नॉट रेडी फॉर अ वुमेन टू लीड? पता नहीं उन लोग का सोच कैसा सोचता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है हम जब ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं तो हम कभी पीछे नहीं देखते, चाहे रात है ना दिन है, अंधेरा है ना उजाला है, हम लोग पीछे नहीं देखते हैं, हम लोग आगे देख के चलते हैं। जो टिकट देते हैं और लोग को सही मतलब रिपोर्ट लेके, सही ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट लेके टिकट देता है तो ज़रूर जीतेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी होता है जो ग्राउंड रियलिटी को नहीं लेके
अभी जैसे मैडम बोला, जो एमएलए जिसको चाहता है उसी को उठाता है, यहाँ पे जिसको किसने चाह रहा है उसी को उठाता है। टिकट जितना जो मिलता है तो जो रिजर्व में आता है वो तो हो जाता है, लेकिन अनरिजर्व में जनरल कोटा में जब आता है तो ज़्यादातर तो सक्सेस नहीं होने देते हैं। अगर जीत के भी आते हैं तो जब तक फैमिली साथ नहीं देते हैं, जब तक हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं कर पाता है। क्या होगा, मेरा फैमिली साथ नहीं दे रहा है बोल के वो लोग मतलब करना था और आगे बढ़ना था उसी में छोड़ देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है उसमें सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो मेरा हिसाब से ये शायद ये लोग क्या सोचता है, ओवरकम नहीं कर पाने के लिए शायद वो लोग सप्रेस करने के लिए मिलने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या अरुणी मैम और जजू मैम ने जो कहा आप उससे एग्री करती हो? स्पेशली आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ आवर स्टेट। इसमें क्या होता है कि हाँ देश भर में दुनिया भर में है, पर हमारे स्टेट में कुछ ज़्यादा ही है। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम नॉट कैटलिस्ट ऑफ generating or creating good policies for the development of humankind and the state itself. It has become एक चैनल बन गया है मैनिपुलेट करने का। तो उसी के चलते क्या होता है कि औरतें जो है, औरतों का तो मैंने पहले भी कहा है हमारे महिला साथी का, कि मोटिवेशन और अंदर से इंस्पायरेशन बहुत जरूरी है। वी हैव टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू क्लेम दैट वी आर ऑलरेडी इन पावर एंड वी नीड आवर स्पेस। वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ये इट्स नॉट ऑन द मेल जेंडर, इट्स अस, वी नीड टू कम फॉरवर्ड। तो वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे में ये लैकुना है, तो उसी को देखते हुए हमारे जो मेल जेंडर है वो आई एम नॉट सेइंग 100%, बट पॉलिटिक्स में 100% मेल जेंडर वाले लोग ही होते हैं। दोज हु यूज द सोर्स टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंसी, द लिबर्टी, द राइट्स ऑफ वुमन to reach that kind of stage where they are now, कि एक नॉर्म्स बना के, पेट्रियार्क का वो नॉर्म्स बना के, एक सोसाइटल ट्रैप बना के औरतों को सबऑर्डिनेट कराना। तो वो चीज़ बना हुआ है। तो उसी के चलते हम औरतों को मतलब जो है कि वी बीन सब्जेक्टेड टू सच सबऑर्डिनेट सिंस लॉन्ग। तो अभी कंफ्यूजन सा पैदा होता है कि अब डिसीजन उन्होंने किया है हमारे मेल जेंडर वालों ने, तो हमको समझ में नहीं आता, बिकॉज दे हैव द 100-200% ग्रास्प ओवर द पॉलिटिक्स। तो उसी के वजह से वी आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट, बिकॉज बुरा ना माने, वी आर नॉट ऑर्गेनाइज। बिकॉज citing the example of our Srimati Jarjum madam, she stood for the MP election. This is my my humble question to the women folk of Arunachal. How many of you have voted for her? There was so much of conflict against her. तो हमारा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। तो कैन वी कम बियॉन्ड दैट? ग्रासेस ऑन द अदर साइड, जो अदर साइड ऑफ द फेंस को भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दे हैव ग्रोन टॉल एंड ग्रीनर, मच मोर ग्रीनर देन अस। It is just we need to also nurture ourselves to grow tall and greener. तब जाके कुछ ना कुछ होगा। So while stating that, I'm not blaming the women folk. It is just to motivate you all कि आप लोग भी आगे आइए, अपना सोच खोलिए, जो विचार है उसको मतलब प्रमोट कीजिए एकदम रेवोल्यूशनरी वे में। अभी हमारा स्टेट जो है, we need that kind of revolutionary step and thinking. Otherwise कुछ नहीं होने वाला। हम लोग फिर वही 5% वाले इलिटरेसी रेट में, लिटरेट रेट में फिर से वही होगा। तो फिर हमारे ऊपर में वी विल रिमेन एज ए सबऑर्डिनेट। तो वो चीज है। हाँ, यू हैड आल्सो आस्क्ड कि हमारा समाज, हमारा स्टेट वुमेन लीडरशिप के लिए तैयार है कि नहीं। जी हाँ। इनफैक्ट 2019 में अभी मीना ने जो बोला, आई हैव बीन विद द कांग्रेस पार्टी फॉर 15 years। द 5th टाइम मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं दे रहा था अपना पार्टी। वेरेज देयर वाज नो अदर कंटेंडर। जबरदस्ती एक एमएलए एस्पिरेंट को एमपी भी लड़ने के लिए मजबूर किया गया, सो दैट आई कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द नॉमिनेशन। सो आई हैड टू लीव माय पेरेंट पार्टी एंड हमको लड़ना था। एंड लड़ना इसलिए था क्योंकि 15 साल से एक औरत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लीडरशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ही पार्टी उसको मौका नहीं दे रहा है। और हम अगर इलेक्शन नहीं लड़ते
तो लोग ये वही मजाक करते, देखो वो भी नहीं किया तो बाकी क्या खा जी हाँ, कर लेगा। वो जो ग्राउंड ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था, नंबर 1। नंबर 2, अभी सेल्फ मोटिवेशन वगैरह की जो बात किया मीना ने, उसका एक एग्जाम्पल हमने ट्राई किया। और दूसरा, हम जिस पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उस पार्टी के बारे में अरुणाचल में किसी को कुछ पता नहीं था। फिर भी आई पोल मोर देन 43,000 इन वेरी शॉर्ट टाइम, और वो इलेक्शन सिंबल कोई पहचानता नहीं। एंड बहुत खबर भी आया कि आपको वोट डालने गया, सिंबल दिखाई नहीं दिया, उस किस्म का जो भी है। द फैक्ट दैट एक अनहर्ड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्टेस्ट करने के बावजूद भी, जिसका कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है स्टेट में, जिसका कोई पॉलिटिकल मेंबरशिप नहीं है, ऐसे में भी 40,000 प्लस, मतलब 43,000 प्लस जो पोल हुआ, इट मीन्स इफ द कैंडिडेट इज गुड, पीपल आर रेडी टू सपोर्ट। सो आई फील टाइम आ गया है, बदलाव आ रहा है। दैट्स व्हाई आई से आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी happy that things are happening and things are changing for the better. और आई थिंक ये बदलाव हमें यहाँ पे हमारे आज के पैनल डिस्कशन में दिख रहा है। हमारी मीना मैम जो कांग्रेस की है और हमारी जर्जू मैम जो JDS से है, शी इज स्पीकिंग अप फॉर जर्जू मैम, आस्किंग द वुमेन folk ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हाउ मेनी ऑफ यू वोटेड फॉर जर्जू मैम ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। तो ये जैसे आपने कहा कि बदलाव आ रही है और बदलाव दिख भी रहा है, और वो आज हमारे पैनल डिस्कशन में दिख रही है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अब लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back to the space, and we are having a special panel discussion on political participation of women in Arunachal Pradesh. जर्जू मैम, जो हमारा ये सेकेंड हाफ है, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जो 1/3 रिजर्वेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूट है जो हमारे अरुणाचल में, यू हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तब किस किस तरह के चैलेंजेस आप सभी को फेस करना पड़ा? 2003 के पंचायत इलेक्शंस के बाद से हमारी जितनी बहनें बेटियां रिजर्वेशंस के थ्रू पंचायत लीडरशिप में आया है, शायद उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर से हम लोगों ने 10 साल जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी, लॉबिंग और कितने सारे मेमोरेंडम वगैरह सबमिट किया गवर्नमेंट को, कितने लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, अपने जो कम्युनिटी एल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हम लोग कितना काइंड ऑफ लॉबी, एडवोकेसी किया। आपने शुरुआत में जो डिस्कस किया था, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स है कि मर्द ही ये काम करेगा, घर से बाहर जाना है, तो वो जो नॉर्म है, ट्रेडिशन को थोड़ा शिफ्ट करने का एक तकलीफ था। दूसरा, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो ट्रेडिशन से हटने के लिए जो डर था, बिकॉज चेंजेस आ ही जाता है, फिर भी चेंजेस लाने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए होता है। वो हिम्मत शायद हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जुटा नहीं पा रहे थे। और जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि औरतें घर के 4 दीवारी के अंदर ही रहेगा, खेती बाड़ी करेगा, सुअर पालेगा, मुर्गी पालेगा, माँ पिताजी को पालेगा, बच्चा पैदा करेगा, उस किस्म का। हम लोग मजाक में भी आजकल इसलिए जिनकी बीबियाँ पंचायत में लीडर हुआ उनको भी छेड़ते हैं कि आपके घर में आजकल चावल पका खाते हैं या कच्चा खाते हैं। तो लीडरशिप 24 घंटा वाला काम नहीं है। आप जैसे सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लीडरशिप वो है। तो वो सांस को आप मतलब कब छोड़ रहा है, कब ले रहा है, किसी को पता नहीं है, वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली होता रहता है। उसी तरह लीडरशिप भी वो आपका जहन में, आपके दिल के अंदर अपना गांव को, अपना जनता को, अपना स्टेट को सर्व करने के लिए जो मोटिवेशन है वो रहना बहुत ज़रूरी है। वो सब के लिए फिर हमारी औरतों को जब हम लोगों ने कहा कि रिजर्वेशन लाना है, आप लोगों ने पंचायत इलेक्शन लड़ना है, तो मैक्सिमम लोग तो अपना शादी के बाद स्पेशली अपना नाम भी भूल गया। वो या तो फलाना किसी घर अपने सास ससुर का बहू है, या किसी का बीवी है, या किसी का माँ का नाम से जाना जाता है। तो बहुत लोग तो खड़ा होके भी भूल जाता है अपना नाम बोलने के लिए।
लाइक यू नो वो सब चीज़ को चेंज करना, महिलाओं को तैयार करना भी एक बड़ा चैलेंज था। और फिर स्टेट में काफ़ी एक स्टडी कमेटी भी गठन हुआ। ट्रेडिशन तो अलाउ नहीं करता वुमेन को एक डिसीजन मेकर्स, तो वुमेन रिजर्वेशन लाएगा तो अरुणाचल में क्या होगा, तो उस किस्म का एक स्टडी कमेटी भी बना। फिर भी थैंकफुली एज आई सेड प्रोग्रेसिव लोग बहुत है अमंग मैन फोक ऑल्सो। इनफैक्ट अभी मीना मैडम ने जो सवाल किया, वो पैट्रियार्की जो है वो सिर्फ मर्दों के दिमाग में नहीं है। पैट्रियार्की एक वैल्यू सिस्टम है, सोशल वैल्यू सिस्टम, जो बहुत औरतों के दिमाग में भी है जी। तो वो जब औरतों के दिमाग में रह के उनके जुबान से जब निकलती है वो तब थोड़ा दुखदाई होता है कि हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि वो औरत है तो ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन बहुत औरतें हैं हु आर मच मोर पैट्रियार्कल देन मेनी मेन आल्सो। तो वो सब भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो सब एक एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो उनका भी अपना एक साइकोलॉजिकल कंपल्सन होता है कि वो पैट्रियार्की के साथ रह के शी कैन एंजॉय बेटर एडवांटेजेस इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। But nevertheless, this was a constitutional provision under the 73rd Constitutional Amendment Act passed in 1993. तो हमारे यहाँ हम लोग 94 से इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिमांड किया, क्योंकि अरुणाचल डिस्पाइट बीइंग ए ट्राइबल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, लेट 60s से दाइंगेरिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद से यहाँ पे पंचायत रहा है, नॉमिनेटेड पंचायती राज मेंबर्स वगैरह वगैरह करके, तो उसमें बहुत कम औरतें आई। तो जब 2003 में फाइनली नॉमिनेशन ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ, तो द मोस्ट एनकरेजिंग थिंग वाज कि फर्स्ट इलेक्शन में आफ्टर implementation of the 73rd Constitutional Amendment Act, we had 38.5% women representations in all the 3 tier panchayats. APWWS के तरफ से हमारे पास तो कोई resources वगैरह नहीं था, but we tied up with one international NGO called the Hunger Project. तो Hunger Project के साथ हम लोगों ने 2 साल का leadership training program किया elected women members का. We couldn't do it throughout the state, but initially we did for 3 districts. Changlang district, जो militancy infested militarized district है, उसमें इलेक्शन हुआ, जबकि तिराप वालों ने बॉयकॉट किया था इलेक्शन को, 2003 पंचायत इलेक्शन को, लेकिन चांगलांग वालों को वहाँ पे हम लोगों का ट्रेनिंग चला। फिर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फीमेल लिटरेसी काफ़ी हाई रहा, लेकिन वहाँ पे आज भी वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड लीडरशिप जो है बहुत नॉमिनल रहा। एंड थर्ड जो है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, उन दिनों ईस्ट कामेंग जो है लोएस्ट फीमेल लिटरेट पॉकेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में था, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, ईस्ट कामेंग इज ए टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ए कम्युनिटी। आज भी वहाँ लिटरेसी बहुत कम होने के बावजूद भी आज तक अरुणाचल में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स, फीमेल लेजिस्लेटर्स ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से आए, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट न्यारी वेली मैडम, उनके बाद मकप दलो मैडम, उसके बाद न्यानी नोतुंग मैडम, फिर बाद में हमारा जो 2003 पंचायत राज जो रिजर्वेशन से आई थी कारिया बागंग मैडम, तो वो आफ्टर हर पंचायत टेन्योर शी कॉन्टेस्टेड एंड 2 times legislator हुआ। आज भी we find East Kameng women are economically also doing much better. तो वहाँ पे काफ़ी एक स्टडी करने के लायक एक कम्युनिटी है। सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने इनिशियली वो किया। उसके बाद we included तवांग, we included पापुमपारे, we included ईस्ट सियांग also. तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह किया। एंड वो ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया। आई कीप रिमाइंडिंग द एकेडमिशियंस इन RGU कि उन लोगों के ऊपर आप लोग आज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स वगैरह जो है रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि उन लोग कैसा आया, अब उनका वो एक्सपीरियंस के बाद, उनका 10 years के बाद क्या हो रहा है, तो तभी जाके आज जो हम आप सवाल कर रहे हैं जी हाँ, कि वो तकलीफ़, वो जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हम लोगों ने जो फेस किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज मोटिवेटर्स,
एज ट्रेनर्स, वो मतलब उसका अचीवमेंट, उसका सच्ची मायने में एम्पावरिंग रहा कि नहीं रहा, तो उसका अभी तक स्टडी शायद नहीं हुआ है। तो मैम इसी के साथ मैं ये अगला सवाल भी आप ही से करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, ये रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ना ही सिर्फ सरकार से ही आपको लड़ना नहीं पड़ा, बल्कि जो समाज की जो सदियों से चली आ रही सोच है वो बदलाव उससे भी आपको लड़ना पड़ा। तो फिर यू आर वन ऑफ द फॉरमोस्ट फीमेल पॉलिटिशियन फ्रॉम आवर स्टेट, तो आपने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा, किस तरह के स्ट्रगल्स आपको फेस करना पड़ा? चूँकि मैं अपने कॉलेज के बाद से ये वुमेंस मूवमेंट के साथ रही, तो इन द पब्लिक डोमेन मुझे ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट विद इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक मार्जिनलाइजेशन हमेशा एक्सपीरियंस किया। In fact, last 2019 election में when I had to leave the Congress party, that was one of the reasons कि आप 15 साल तक you try to be kind of a best member of the party, despite that you are not being accepted by the male leadership. आपको जब तक opportunity नहीं देता है, how do you know कि आपको public accept कर रहा है कि नहीं कर रहा है? The platform has to be facilitated by the organization, which was not happening. It was not that I actually don't like the ideology of the party that I left, but the leadership of the party was not agreeable. As such, individually काम करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, but leadership space के लिए लड़ना पड़ता है। जी हाँ। अरुणी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करा तो आपको किस किस तरह का संघर्ष करना पड़ा? वॉज इट स्मूथ सेल फॉर यू या फिर आपको भी बहुत दिक्कत हुई? पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसा कुछ खास स्ट्रगल तो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो भी मैंने वुमेन रिजर्वेशन में मुझे टिकट मिला है बोल के मैं आके चीफ काउंसलर बना। तो जो भी हो, ये हमारा सीनियर्स लोग जो ये क्या काम किया, इसलिए थैंक यू जर्जू मैम। मिस जर्जू मैडम का स्पेशली थैंक यू। थैंक यू जर्जू मैम टीम। तो इसमें मुझे यही किया। तो उस हिसाब से देखने से अभी मैंने आने के बाद मुझे उस लेवल तक मुझे पता नहीं कैसा समाज कैसा क्या, क्योंकि मैं अपना एरिया को ही जानता था। अभी हम पॉलिटिक्स में अभी 7-8 इयर्स होने के बाद अभी मैं थोड़ा पीछे मोड़ के देखने से या अभी फील्ड में बैठ के देखने से सिस्टम ऑलरेडी स्टॉक में है, हम लोग का पास में है, फ्रंट में है, लेकिन उसी सिस्टम को अभी हम लोग माने एक्शन में लाने के लिए दिक्कत है। उसी माने सिस्टम को हम लोग माने उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है। तो उसी सिस्टम को हम लोग रिजर्वेशन तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन सर्टेन लेवल तक हम लोग को ना ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी में हम लोगों को रिप्रेजेंट ये करता है, देता है। जहाँ तक हम लोग जाना चाहिए जा नहीं पा रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें क्या करना है, उसी के लिए अभी सबसे पहले हमारा जो सोच बदलना होगा। तो सोच माइंडसेट को जब तक चेंज नहीं करेगा और नहीं कर पाएगा तो सिस्टम हमारा आँख का सामने में इधर पड़ा रहता है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो कागज पे पड़ा रहेगा, सिस्टम ऑलरेडी उसमें ये है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाता है। तो उसको करने के लिए अभी हमको लगता है अभी आप लोग एजुकेटेड है, एजुकेटेड लोग आगे आना चाहिए। मीना मैम, जैसे कि जर्जू मैम ने कहा कि मार्जिनलाइजेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, आई थिंक उसे ये फेस करना पड़ा। और अरुणी मैम जहाँ तक कह रही है, इनका लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ये है कि एक चेन ऑफ पावर होल बन गया है, उस चेन को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, वो बदलाव लाना इतना आसान नहीं हो रहा। तो क्या आपको भी इस तरह का किसी संघर्ष का सामना करना पड़ा जब से आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करा? I joined Indian National Congress Party 6 years back, 6.5 years back. हर लोगों का अपना स्ट्रगल रहता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट श्रीमती जर्जुम मैडम, श्रीमती हिगी और मैडम, and they have built a platform for us, at least where we can keep our feet and stand and voice out. They have given us the voice.
तो उसके लिए बहुत दोनों को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अपने अपने लेवल पे दे हैव कंट्रीब्यूटेड। रहा सवाल स्ट्रगल का, इट्स स्ट्रगल इज ऑलरेडी देयर। एक इनिशियल लेवल में होता है, आफ्टर अचीवमेंट देन इम्प्लीमेंटेड लेवल में। सबसे पहले मेरा स्ट्रगल ये है कि it's already there, so what is the purpose of that platform? What inspire you to get that to think about that purpose? And finally क्या है कि इंस्पायरेशन के साथ आप क्या कैसे मोटिवेट होते हो, आपका मोटिवेशन क्या है? तो these are the three things which I'm struggling with it. Gender inequality, isolation, marginalization is always there, but वो तब आती है, those things comes into existence when we are clear about our purpose, our inspiration and our motivation. तो जैसे कि मैं एक धर्म को मानती हूँ, लाइक इट्स आउट ऑफ द टॉपिक बट इवन देन उसका उस धर्म के हिसाब से ये कहना है कि व्हेन यू आर बॉर्न विद अ पर्पस ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे हम लोग कोई भी सोशल सेक्ट या रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका एक पर्पस रहता है कि आप किस लिए है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आई हैव आइडेंटिफाइड माई पर्पस, आई हैव रियलाइज दैट जैसे कि हमारे एल्डर्स ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो क्या उसको आगे लेके जाना हमारा धर्म नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? वो ये दो चीज़ को अगर मैंने आइडेंटिफाई किया है, फिर इसके बाद उसी हिसाब से पढ़ाई भी की, तो वो एक क्लियर कॉन्सेप्ट देता रहा। अदरवाइज तब तक तो मेरा खुद के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, खुद सबसे बड़ा स्ट्रगल अपने अंदर था। तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो चीज़ें सारी जो उनके योगदान है, उनके बलिदान है, उनके सेक्रीफाइसेस है, चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को स्टेट तक लेके आके इम्प्लीमेंट कराना, जो कि किसी को पता नहीं था, वो चीज़ को आगे लेके जाना, दीज आर द हार्ड वर्क विच दे हैव पुट टुगेदर विच हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी। फिर इसके बाद मैं खुद से इंस्पायर हो कि क्या करूं, लोगों को साथ लेके जाना है, तो बाकी महिलाओं को भी साथ लेके जाना है। दैट वाज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो उस चीज़ों में मतलब अभी हमारा जो है लेवल चेंज हो गया है स्ट्रगल का। हाँ, तो ऐसा करके, तो उसके लिए कौन सा बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा? सो आई स्टार्टेड ट्राइंग लुकिंग फॉर इट, बिकॉज यू नीड अ प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक मकसद दे दिया है, अब उसको लेके जाना भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए भी। तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, जब मैं थी ग्रेजुएशन कर रही थी या फिर सोशल वर्क पढ़ रही थी या फिर अपना एमफिल कर रही थी, देन आइडेंटिफाइड चलो कि कोई बात नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस विल डेफिनेटली गिव मी ए प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ब्लेमरिंग अबाउट वन पार्टी और अप्रिशिएटिंग वन पार्टी, बट आई हैव चेक द हिस्ट्री। जैसे कि 1978 में सबसे पहले हमारा उस समय मतलब कांग्रेस का ही थोड़ा रिजिम था, तो 1978 में सीबू काली करके फर्स्ट महिला नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर थे। देन जैसे जर्जुम मैडम ने बताया कि देयर वेर वुमन, लिस्ट ऑफ वुमन हु पार्टिसिपेटेड, हु हैव कॉन्टेस्टेड एक्चुअली इन द इलेक्ट्रल उस पे, जैसे कि न्यारी वैली जी है 1980 को, फिर देन ओमनदोरी मैडम जी है 1990 को, कमली मौसंग है 1990 को, 95 को है यादा पापंग जी, फिर 99 को है मेकअप दोलो, 2001 में न्यानी नातुंग जी है, 2002 को यारी दुलुम है, फिर नांग सातीमेन जी है 2009 को, उसी में करेम बागंग मैडम जी भी थे। तो वो सब सारा लिस्ट मतलब जानने के बाद देखा कि हाँ चलो इसमें शायद कुछ किया जाता है, बिकॉज व्हेन यू वर्क यू नीड अ ग्रुप। तो आई जस्ट जॉइंड उसमें, और अपना आइडियोलॉजी भी मैच जा रहा था, क्योंकि आई गो फॉर सेक्युलर थिंकिंग, लिबरल, दैट इंस्पिरेशन जो है वो सब चीज़, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को विश्वास करती, संविधान को विश्वास करती हूँ एज ए इंडियन। तो हमको लग रहा था कि हाँ वो एक है जगह, तो आई हैव जॉइंड इट। फिर इसके बाद जैसे कि हम मैडम ने कहा कि मार्जिनलाइजेशन, देन वो चीज़ शुरू हो गया। देन जर्जुम मैडम ने सही कहा है कि मतलब अभी मैं स्ट्रगल पे आ रही हूँ, पहले तो इंस्पायरेशन, मोटिवेशन पर्पस पे था, अब स्ट्रगल, मेन स्ट्रगल क्या है एज ए वुमन, एज ए नारी। तो ये क्या है कि वो कहा है कि मादा का जो आवाज़ होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसका ऊंचा नहीं होता है, और नर का बहुत ऊंचा होता है। सी वी वुमन वी डू नॉट बिलीव इन नॉइज। आवाज़ जिसका ज़्यादा ऊंचा होता है, इट डजंट नेसेसरीली मीन दैट इट्स ए इफेक्टिव वॉइस, इट कैन बी ए नॉइज। तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मादा जब आवाज़ देता है तभी करके सृष्टि का रचना होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कम्स इनटू इट। मादा आवाज़ देती है, नर आता है, तो देन सृष्टि का रचना होता है, उससे महिला पुरुष और जन्म लेता है। सो वन कैन नॉट जस्ट नलीफाई कि मतलब कि औरतों का आवाज़ नहीं आता है तो ये कुछ नहीं है, नर को ही जाना है। सो दोस मार्जिनलाइजेशन, वो सोच में जो हमारा जो मार्जिनलाइजेशन है, आइसोलेशन है,
जो सब ऑर्डिनेशन सोच में है उसको हटाने के लिए, तो वो उसमें तो ज़रूर है, पार्टी में है, वो दैट चीज़ है। आइसोलेशन मार्जिनलाइजेशन का मतलब नहीं होता है कि मेल मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी विल कम एंड यू नो take the woman party member in a corner. It's about आपका सोच क्या है, आपका क्या है, हक है, क्या राइट है, उसको नहीं देता है, वो छीनने का कोशिश करता है। तो उसको वो स्ट्रगल मैंने भी लाइक एक्सपीरियंस किया है। बट सिंस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हर जनरेशन एंड माई जनरेशन, क्योंकि अभी लोग थोड़ा थोड़ा मतलब दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग देयर आइज, तो मेरे साथ इतना नहीं हुआ सिंस आई एम टू वोकल एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट ऑल्सो। लोग मुझे नफरत भी करते हैं, मतलब नफरत करने लोग मुझे साथ भी नहीं रख पाते हैं, दूर भी नहीं रख पाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप कुछ चीज़ को एजर्ट करते हो तो डेफिनेटली दे विल क्वेश्चन यू, तुम्हारा पॉलिटिक्स में कितना पुराना है, तुम कितना साल से, यू आर जस्ट अ किड। औरत चाहे 40 या 50 साल का हो जाए तब भी मतलब यू आर अ किड। आदमी यहाँ में 35-25 साल का है तो वो बहुत मेच्योर है, उसका डिसीजन इज़ वेरी बिग, मतलब वेरी इफेक्टिव, वो वाला रहता है। तो दीज आर द स्ट्रगल विच वॉज देयर। तो मतलब बट आई कीप ऑन टेलिंग माई महिला फ्रेंड्स ऑल्सो एंड मेल मेंबर्स ऑल्सो, वक्त तुम्हारा हमेशा रहेगा, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, हम सबका भी रहेगा। लेकिन जो दौर आएगा, द ट्रेंड विच वुमन विल सेट, दैट विल नेवर गोस टू मैन, दैट विल नेवर कम टू मैन, वो औरतों का ही रहेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि जो ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर लेवल तक वो हमेशा औरतों ने ही किया, चाहे वो कैंपेन हो या किसी प्रत्याशी का, उम्मीदवार को प्रमोशन हो या हारना जिताना या वोटर्स हो। अगर आप जाते हो मशीन में ईवीएम में वोट करते, आज तो ईवीएम का ट्रेंड चल रहा है, तो भी देखिए पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। वो बात अलग है कि यू डोंट वांट वुमन टू बी ए लेजिस्लेचर, वो बात अलग है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा स्ट्रगल ये है अभी तक और आगे भी शायद चलेगा, पर आई वांट माय न्यू जनरेशन, दोस कमिंग अप जनरेशन, हाँ, तो इसलिए वक्त हमारा है। मेरे लड़कियों जितने भी है जो अभी छोटे छोटे लड़कियों हैं और महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, वक्त किसी का भी हो, लेकिन दौर हमारा आएगा। यू ऑल हैव टू स्टैंड ऑन दिस एंड इसी पे विश्वास करके आगे। और मैं भी ऐड करना चाहूँगी, आई थिंक द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट वुमेन कैन बी ग्रेट लीडर्स एंड ग्रेट डिसीजन मेकर इज़ द रिसेंट जो हमारे पेंडेमिक में हुआ था। रिपोर्ट्स हैज़ कम कि कंट्रीज विच हैज़ बीन लेड बाय वुमेन वेर बेस्ट इन हैंडलिंग द पेंडेमिक। हमारा न्यूजीलैंड को देख लीजिए, जर्मनी बोल लीजिए। तो इसी के साथ हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है। एक आखिरी सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि हाउ डू वी इनकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आपने बहुत बार कह दिया कि दे हैव टू कम फॉरवर्ड ऑन देयर ओन, और मैम ने कहा कि सोच बदलना चाहिए। सो आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस क्वेश्चन टू द पैनल। आप हमें बताइए कि whoever wants to answer कि ये कैसे किया जा सकता है बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। Women on their own will not be able to change the politics in Arunachal or in the country. लेकिन as I said कि अगर मैं अपने पार्टी में या अरुणी मैम अपने पार्टी में या मीना मैम अपने पार्टी में और यंगर जनरेशन वीमेन को इंक्लूड करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए प्लेटफॉर्म, उनका पार्टी का आइडियोलॉजी सोसाइटी को किस किस्म से आगे ले जाने का एजेंडा रखता है, क्या स्ट्रेटजी है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो किस किस्म का है, और पार्टी का आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स क्या कहता है, तो वो सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज दैट इज़ योर यूएसपी। आप ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग करोगे तो उसी बेसिस में होगा। लेकिन अरुणाचल का इसलिए चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक लड़कियां इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो इलेक्शनरिंग का जो खर्चा है, मिनिमम बेसिक मिनिमम खर्चा भी बहुत है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होगा, तो उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द वीमेंस मूवमेंट हम लोगों ने बहुत ज़माने से, मतलब मिड 90s से कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शनरिंग जो है इट शुड बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, तभी मेल फीमेल बराबर का पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो वो डिमांड आज भी कायम है, लेकिन somehow it's not happening। और जब तक इलेक्शनरिंग और डेमोक्रेसी एंड वोटर्स राइट्स, जो एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह, इसका जो बेसिक वैल्यूज़ को हम लोग वोटर्स तक नहीं पहुंचा सकते हैं या वोटर्स को उस हिसाब से एजुकेट नहीं कर सकते हैं,
वो मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज अरुणाचल में एजुकेशन जो है वो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। वो माइंड सेट को ब्रॉडनिंग करने के लिए, वाइडनिंग करने के लिए, या ह्यूमन जो वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है। सिंस 1994 when I was heading an organization called the Young Volunteers for Democratic Awareness, YAPDA करके, when TN Session used to be the Chief Election Commissioner, तो उस समय से लेके हम लोग दर देन अरुणाचल यूनिवर्सिटी और रिसेंटली ऑल्सो जो प्रेजेंट RGU वाइस चांसलर, एवरी टाइम ए वाइस चांसलर कम्स इन, वी go and kind of request also कि hopefully the present VC is quite dynamic, hopefully he will take it up. But हमारा personally हमारा feeling ये है कि जब तक हमारे अपने educated students, youth जो है, not just girls but जो educated generation है, उनको political science पढ़ने का मकसद या लॉ पढ़ने का मकसद should not be just for bread and butter, but to improve the quality of the political dynamics in the state, the political understanding at grassroots. तो उसके लिए the universities and colleges में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसको आम जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर कैप्चरिंग पे लगा हुआ है, वो जनता को एजुकेट करने पे नहीं लगा है। और आज अगर पंचायत इलेक्शन में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आप बैनर देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटीज पासीघाट और ईटानगर का आने का है, तो स्मार्ट सिटी में कॉरपोरेटर का क्या एजेंडा होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी का क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, वो जनता तक अभी तक नहीं पहुंचा है। हाउ डू द लीडर्स एक्चुअली प्लान टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट और द कैपिटल सिटी, वो सब नहीं है अभी। बेसिकली पावर कैप्चर करने का है। एंड जब कॉरपोरेटर्स जो कैंडिडेट्स है, एस्पिरेंट्स है, उनको दे विल बी फंडेड बाय देयर लीडर्स और देयर पॉलिटिकल पार्टीज, और दे वुड मोबिलाइज देयर ओन प्राइवेट और इंडिविजुअल रिसोर्सेज टू गार्नर वोट्स। इस पैसे का खेल से हम पॉलिटिक्स का क्वालिटी को बदल नहीं सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी इस सिस्टम को नहीं बदल सकता, औरतें क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकता है। बट एज मीना सेज, औरतों का जो समझ है, जो हम लोग जो जेंडर लेंस की बात करते हैं या जेंडर एंगल की बात करते हैं या हर पॉलिसी प्रोसेस को एंजेंडरिंग करने की जो बात करते हैं, हमारे जो महिला आंदोलन है वर्ल्ड ओवर, अभी आपने जो पैंडेमिक के दौरान न्यूजीलैंड की बात कही या यूके का, जर्मनी का, या फॉर दैट मैटर इवन साउथ कोरिया का, इवन इंडिया में केरला वेयर द हेल्थ मिनिस्टर इज ए लेडी। तो इस किस्म का जो बात है, हाँ, केयर गिविंग औरतों का एक इनेट नेचर है, मदरिंग, केयरिंग वाला। तो वो सब जो एस्पेक्ट्स है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। एंड उसको जब हमारे यंगर जनरेशन बोथ मेन एंड वीमेन समझ जाएंगे, क्वालिटी ऐसे चेंज होगा। और जिस किस्म से अभी कांग्रेस पार्टी में तोकोमिना आई है पार्टी से, तो बहुत लोग बोलते हैं कि तोकोमिना मैडम का जो पैनल डिस्कशन में या डिबेट में उनका जो प्रेस ब्रीफिंग वगैरह है बहुत पावरफुल है, वेरी प्रिसाइज है। इस किस्म का अभी अगर बीजेपी में महिला मोर्चा सिर्फ नहीं, बीजेपी पार्टी में मेन बॉडी में, पेरेंट बॉडी में अगर हमारी women representatives, if they can be as powerful, और या बाकी जितने पार्टीज NPP, PPA या हमारे अपने JDS के, if we have opportunities to actually prove our mettle as good leaders, so वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन में आ जाएगा। और हमको बहुत उम्मीद है क्योंकि I see lots of potential in the younger generation of both men and women in Arunachal. I am very optimistic about it. हमारा जो वर्ल्ड ओवर वुमेन्स मूवमेंट का एक हमारा एक स्लोगन भी है, that 21st century belongs to the women. तो एक हिंदी में हमारा एक आंदोलन का एक गीत भी है, ले कंधों पे आधा आकाश सर को उठा के चले, 21वीं सदी की ओर हिंद की महिला चले।
जी. So we are very gung ho about it. We'll change the politics of the state and the country. तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे मीना मैम ने कहा कि द सीनियर्स हैव paved the path and now the onus is on the younger generation to carry forward their legacy. तो उसी के साथ हमारा जो आज का ये पैनल डिस्कशन है हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगी कि जो इंक्रीज इन वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है will not only help in empowering the women but just like Meena said it will also give and add different perspective like while framing the law or while tackling a situation. And साथ ही साथ अगर हम किसी सोसाइटी के कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो a society can never be completely developed if the other half of the population, if the voice of the other half of the population is unheard. So with that we shall end the program tonight. Thank you so much ma'am for joining us and for this wonderful panel discussion. Thank you. Thank you and have a good night.